پوری قوم نو جے ڈاکٹر صاحب دی قیادت تے اسی لے گئے تے ہور کیوں پریشان ہو؟ پیڑا ہور تے پھکیاں ہور. گل ایسا کیڑا جرم کیتا؟ 17 لاکھ بندے ڈاکٹر صاحب کی قیادت گئے سنی، 17 لاکھ واپس آئے، 5000 قید ہوئے، 1035 لڑکیاں کے مقدمے ہوئے، ڈاکٹر صاحب انہوں نے چھڑایا. کدی بھی انج نہیں ہویا کہ سنی ہے گئے ہو من میں پابندی ہے ڈاکٹر صاحب کہتے تو گاڑ نہیں کرنی، میں اس پاچوں کے امام منیا تو میں ورنہ میں تو چھوڑنا سی، میں کیوں اس لیے کھڑا ہے کر. قائد اہل سنت ڈاکٹر صاحب سارے ہاتھ کھڑا کرو ذرا. روزانہ جی اہل سنت میں اتحاد ہونا چاہیے. بھئی اتحاد تو ہو گیا، ڈاکٹر صاحب قائد تاریخ بھی لبا ہے کہ یا رسول اللہ ہے. جیڑا بندہ کام نہیں نہ کرنا چاہتا وہی کہتا جی اتحاد ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب قائد بن گئے، سارے سنیاں نے مل کے بنایا انہوں نے. ایک قائد اہل سنت ہے اس ویلے. جب 13 گھنٹے ایک بندے نے ممتاز قادری کے خلاف گل کی تو ڈاکٹر صاحب نے وہ پھر جواب دیتا، اپنا علم پھر چھپا کے نہیں رکھا، اگر مگر نہیں کی بھائی میری شخصیت کہیں متاثر نہ ہو جائے. وہ سارے ہار گئے 3 سال سے جنہوں نے رولا ڈالا ہوا تھا، اور جس نے امام احمد رضا کے پرچم کو تھاما ہوا تھا وہ جلالیات جیت گیا ہے اور لوگوں کے دلوں پہ راج کر رہا ہے. جب بندہ عقیدے کو چھوڑ جائے، یہ جتنی مرضی بڑی شخصیت ہو، وہ اپنے آپ کو پہاڑ کی صورت پہ کیوں نہ پیش کرنا چاہے، وہ شخصیات ہار جاتی ہیں اور عقیدہ اہل سنت جیت جاتا ہے. مجھے ان سب نے مل جل کر آگے کیا، پھولوں کے لیے نہیں، گولیوں کے سامنے. لاہور ریلوے اسٹیڈیم کا جلسہ تھا، امام عظیمت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کا بیٹا میرا ہاتھ پکڑ کے اونچا کر رہا تھا. شاہ احمد نورانی کا بیٹا، ان کا بھی گزشتہ دن وصال کا دن تھا. اللہ کروڑوں رحمت نازل کرے اس پر پرست پر. قائد عظیمت ان کا بیٹا میرا ہاتھ پکڑ کے اونچا کر رہا تھا اور ساتھ باقی سارے ان سے بیعت لے رہا تھا. ہمارے سجادہ نشین صاحب سب میری بیعت کر رہے تھے کہ تحریک کے رہائی غازی ممتاز حسین قادری کا چیئرمین اشرف اعظم جلالی کا سارے بیعت کرو. پتا تھا سامنے موت ہے، پابندیاں ہیں، رستہ آسان نہیں. ویسے تو ہر کوئی کہتا ہے میں لیڈر ہوں، میں لیڈر ہوں، میں لیڈر ہوں، میرا حق ہے. لیکن جب سامنے ستم تھا، ظلم تھا، کڑیاں تھیں، جیلیں تھیں، اس وقت سرگن سب کہتے ہیں اشرف اعظم جلالی لیڈر ہے. اور پھر جب پنجاب اسمبلی کے سامنے پھر بیعت لی گئی، اس میں تو وہ انٹرنیشنل لان بھی بیٹھے ہوئے تھے جنہیں عرفان شاہ کہا جاتا ہے، خادم حسین رضوی، وہ گجرات کے پیر ہے. اس نے اعلان کیا میں اپنی 3 بیویوں سمیت بیعت کرتا ہوں، اشرف اعظم جلالی کے ہاتھ پر مر جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ سب ویڈیو موجود ہے. عرفان شاہ بیٹھ کے اس طرح ہاتھ بلند کر کے میرے ہاتھ پر بیعت، میں ان کا مرشد ہوں، میں ان کا قائد ہوں، میں ان کا لیڈر ہوں. انہوں نے یہاں کے سجادہ نشین نے درجنوں بار لاکھوں کے مجمع میں مجھے قائد اہل سنت کہا. میں نے تو نہیں کہا کہ مجھے کہو. اگر میں رستے سے ہٹا ہوں تو شکایت کریں، اگر پتھر پڑنے سے بھاگے ہیں تو مجھے شکوا کیوں؟ اب روتے ہیں میری تو 1.5 سال کی تنخواہیں بند ہو گئی تھی. تو مجددی بننا آسان تو نہیں ہے. میں ہوں غلام حافظ الحدیث. میرے پروگرام بند ہوئے چینلوں پر، ایک چینل میرے پیچھے دوڑتا تھا. لیٹر آیا سب چینلوں کو کہ اشرف اعظم جلالی ممتاز قادری کا دوسرا نام ہے، اگر اس کی تصویر صرف چینل پہ آئی تو چینل بند. سارے چینلوں سے میرے پروگرام بند. میں نے کہا منظور ہے. پھر سارے درباروں کو لیٹر لکھے گئے کیونکہ 3 حکومتوں سے ہم نے ٹکر لی. ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کی FIR PPP نے کاٹی تھی اور سزا اور پھندے پہ نون لیگ نے چڑھایا تھا. اور پھر اگلا مرحلہ جو تھا وہ PTI کا. سارے درباروں پر لیٹر آئے کہ کسی روحانی آستانے پر اشرف اعظم جلالی کا خطاب نہیں ہونا چاہیے. مجھے پتا ہے نکی شریف اگر میرے جانے پہ پورا مجمع اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا تو اس لیے نہیں کہ
मैं कोई दावेदार था कि सैयद जलालुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का मैं भी हकीकी बेटा हूं, ये मेरा ना दावा था ना है, मगर निस्बत तो यकीनन थी और है। तो वो जो नून लीग के चूसनी चूस रहे थे एमपी की, उन्होंने पाबंदी लगवाई कि इसकी तकरीर नहीं होनी चाहिए। हमने कहा बर्दाश्त, घर में तकरीर ना हो। इनके मुरीद झगड़े, इनके मुफ्ती इनसे झगड़े कि जिसकी तकरीर के लिए सारी दुनिया तड़पती है वो स्टेज पे बैठा होता है, यहां उसकी तकरीर क्यों नहीं होती। आए बाएं शाएं करके वक्त गुजारते रहे। फिर वीजों की पाबंदियां, यूरोप के किसी मुल्क में मैं नहीं जा सकता, मुझे वीजा नहीं मिल सकता, एयरपोर्ट पे एंट्री नहीं मिल सकती। तो मैंने 295C पर उनको पांव तले दबोच के रखा है, तो मैं तो उसी जगह पे हूं। लेकिन दाएं बाएं आगे पीछे देखने से पता चला, कोई कहता है मेरी तो औकाफ का मैं मुलाजिम था, 1.5 साल की मुझे तो तनख्वाह ही नहीं मिली। तो दावेदार मुजद्दिदी होने के हैं, मुजद्दिदी उलमा, मुफक्किर इस्लाम, अजीम मजहबी स्कॉलर हजरत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब ज़ीदा शरफ़ुहु, चेयरमैन तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कायद की हस्ती किसी तारुफ की मोहताज नहीं, माजी भी अजीम और सुथरा और हाल भी पकीज़ा और मुअत्तर, न डर और बेबाक की आदत, खुली किताब मेरे कायद की जिंदगी। अगरचे अलमिया है कि आज जिस वक्त हमारे कुछ अपनों के सामने ही मेरे कायद का नाम लिया गया तो उन्होंने आगे से बरजस्ता ये बोला कि कौन अशरफ आसफ जलाली। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, वो अशरफ आसफ जलाली के जिसने 7 माह की कलील मुद्दत में कुरान मजीद कुरान रशीद को मुकम्मल अपने सीने में उतारा, और फकत सीने में नहीं उतारा बल्कि उतार कर उसी साल मुसल्ले पे खड़े होकर मुकम्मल कुरान मजीद नमाज़े तरावी में सुना भी दिया। और सिर्फ उसी साल ही नहीं बल्कि तब से लेकर अब तक 35 मरतबा मेरे कायद ने इसी कुरान को मुसल्ले पे खड़े होकर सुनाने की सादत हासिल कर चुके हैं। जी हाँ, वही अशरफ आसफ जलाली कि जिस वक्त उम्मत मुस्लिमा पर शिरक के और बिदत के फतवे दागे जा रहे थे, और जिस वक्त उम्मत मुस्लिमा तड़प रही थी शिरक और बिदत के तीर खाकर, तो गुजरांवाला की सरजमीन पर मदरसा नमरा लिल बनात, वो गैरों का मदरसा, और गैरों के मदरसे में वो जिस वक्त मुनाजरा हुआ, मशहूर मुनाजरा, वहां भी ताइफा एक गुमराह ताइफा है, तो उस मशहूर और मारूफ मुनाजरे में जिस वक्त मेरे कायद इमाम जलाली ने गैरों के ठक्के छुड़ाकर हमेशा के लिए मसलक के हक आले सुन्नत व जमात उसको 4 चांद लगा दिए थे, वही अशरफ आसफ जलाली। जी हाँ, वही अशरफ आसफ जलाली कि जिस वक्त लोग अंधाधुंध गायबाना जनाजा वो पढ़ रहे थे, हत्ता के दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पर भी लोगों ने गायबाना नमाज़े जनाजा पढ़ा, तो इसी कायद अशरफ आसफ जलाली ने आगे बढ़कर हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह उनके कदमों पे वो बैठकर वो अजीम शान गायबाना जनाजा सेमिनार का इनेकाद किया। आज तक बातिल अंकुश बदंदा है और उस फितने का भी आपने कला कमा किया। जी हाँ, वही अशरफ आसफ जलाली कि जिस वक्त गैर कह रहे थे हम तौहीदी हैं, तौहीद हमारी है, सुन्नी तौहीद बयान नहीं कर सकता, सुन्नी के पास फकत बयान रिसालत है, तो उस वक्त हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह का ये रूहानी बेटा मैदान में उतरा और दर्जन से जायद आपने अकीदा तौहीद सेमिनार्स का इनेकाद करके वो गैरों को ये साबित किया कि नहीं तौहीदी कल भी सुन्नी था, तौहीदी आज भी सुन्नी है, रिसालत बयान करने वाला वो कल भी सुन्नी था, वो आज भी सुन्नी है। हाँ, वही अशरफ आसफ जलाली जिस वक्त बात बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ी, और वो लोग जिस वक्त आपकी यही गोजरा की सरजमीन जिस वक्त उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनकी शान के खिलाफ
राफजी भोंक रहे थे, और जिस वक्त सैयद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनकी शान पे खैर हमले कर रहे थे, हर कोई सोच रहा था कौन बोले क्या बोले, तो अपनी जान को हथेली पे रखकर धमकियां भी मिली, सब कुछ हुआ तो अपनी जान को हथेली पे रखकर सुन्नी का सच शिया का झूठ के मौजू पर 6.5 घंटे खिताब करके अहले सुन्नत के परचम को हमेशा के लिए बुलंद करने वाली शख्सियत को ज़माना अशरफ आसिफ जलाली के नाम से जानता है। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती। जिस वक्त गैर बात कर रहे थे हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान पर लोग जुमले कस रहे थे, तो हजरत आला हजरत इमाम अहमद रिज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह उनके एक जुमले पर शान अमीर मुआविया सेमिनार का इनेकाद करने वाली शख्सियत को ज़माना अशरफ आसिफ जलाली के नाम से जानता है। और जिस वक्त बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ी सन 2011 का ज़माना आया और गाज़ी नमूस रिसालत हजरत गाजी मलक मुमताज हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिस वक्त आपने उस मलऊन को वास्ते जहन्नम किया, लोग अंगुश बदंदा थे, क्या बोले मुमताज के बारे में, क्या कहे मुमताज के बारे में, कौन से जुमले बोले मुमताज कादरी के बारे में, तो उस वक्त जो मैदान में आकर मर्दे हक परस्त मैदान में निकलकर जिसने मुमताज कादरी को सबसे पहले गाजी कहा था, वही शख्सियत अशरफ आसिफ जलाली की है, जिसने मुस्ततरद किताब के हवाले पढ़ पढ़ के उम्मत को ये बताया था मेरे गाजी को कातिल मत कहो, गाजी कल भी गाजी था, गाजी आज भी गाजी है, वही अशरफ आसिफ जलाली। जिस वक्त बात बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ी और जिस वक्त सऊदी हुकूमत साजिशें कर रही थी हम गुंबद खजरा को माशअल्लाह शहीद कर देंगे और हम इसे वो जन्नतुल बकी में सरकार की कब्र को मुंतकिल कर देंगे, तो मकीन ने गुंबद खजरा मिलियन मार्च और मिलियन कॉन्फ्रेंस की सूरत में मीनारे पाकिस्तान के ज़ेरे साया लाखों उशाक को इकट्ठा करके आपने जो फतवा सादर किया, जो फतवा उम्मत के सामने आया, वो फतवा सादर करने वाली शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली उनकी शख्सियत है। और फकत बात इतनी ही नहीं, जिस वक्त बात बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ी आला हजरत असीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हजरत इमाम अहमद रिज़ा खां फजल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह उनके फतावा का मजाक उड़ाने वाले हमारे कुछ नाम नेहाद अपने और राफियों के जलसों में जाकर शेखुल इस्लाम के लक़ब वसूल करने वाले जिस वक्त आला हजरत के फतावा का मजाक उड़ा रहे थे, तो ये आला हजरत का रूहानी बेटा हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह अलैह का ये फितरी बेटा और हजरत हाफिजुल हदीस पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके इल्म को लेकर मैदान में निकलने वाला 100 अफकार रसा सेमिनार मुनक्किद करने का ऐलान कर दिया। और फकत ऐलान ही नहीं किया बल्कि बात बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ी तो उनमें से 20 अफकार रसा सेमिनार्स का अब तक इनेकाद कर भी चुके। उनमें से पहला अफकार रजा सेमिनार मसला इम्कान किज़ब पे, दूसरा अफकार रजा अल्लाह के औलिया बादत विसाल सुनते भी हैं मदद भी करते हैं, तीसरा हकायक़े मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पे, और चौथा मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीदार इलाही इस पे, पांचवा असमत आलो असहाब इस पे, छठा तर्जुमा कंजुल ईमान तराजुम में मुनफरिद कैसे इस पे, सातवां अकीदा शिफाअत इस पे, और आठवां सुन्नी की पहचान इस पे, और नौवां कादियानी कुफरियात का इल्मी मुहासबा इस पे, और 10वां खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन इनकी असमत पे, 11वां इमाम अहमद रिज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह और फ़हम शरीयत इस पे। और आगे बढ़ते बढ़ते 14वां अफ़कार रज़ा सेमिनार 2 कौमी नजरिया इस पे, और 15वां अफ़कार रज़ा सेमिनार मोहब्बत अहले बैत शायर अहले सुन्नत इस पे, और 16वां सेमिनार काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो इस पे, और 20वां अफ़कार रज़ा सेमिनार नबूवत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेमिनार इस पे, और सिलसिला बढ़ता बढ़ता आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। मैदान तदरीस हो तो मेरा कायद सामने, मैदान इफ्ता हो तो मेरा कायद सामने, मैदान तालीम हो तो मेरा कायद सामने, मैदान मुनाज़रा हो तो मेरा कायद सामने, वो मैदान तनसीब हो तो मेरा कायद सामने। और अब जिस वक्त मरहला आया वो सुन्नी सेमिनार का इनेकाद करने का ईमान इकबाल में 29 दिसंबर को तो मेरा कायद सामने। और चलते चलते बात जिस वक्त आगे बढ़ी तो जिस वक्त आपने PhD का मकाला 3 जिल्दों में अरबी में लिखा, मैं इंटरनेशनल
इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के मिस्र के एक प्रोफेसर डॉक्टर हसन महमूद निसार को जिस वक्त मैंने वो अरबी का मकाला पेश किया तो महमूद हसन निसार मुझसे वो पूछने लगा, हल हाजर रजुल अरबी, क्या ये बंदा अरबी है? तो मैंने कहा नहीं, ये बंदा अरबी नहीं, ये अजमी है। तो मिस्री टीचर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का वो बोला तो कहने लगा, वल्लाही ला उसल्लिमो, अल्लाह की कसम मैं नहीं मानता कि ये बंदा अजमी है, खुदा की कसम है ये बंदा अरबी है। कि जिसने इतनी फसी हो सभी जुबान में, जिसने 3 जिल्दों में अरबी में पीएचडी का वो मुकाला लिखा, लोग हैरान हैं। हर जगह पे, हर मंजर पे, हर मैदान पे ये बंदा आगे क्या है, आगे है, करता क्या है? इसके पास ताकत कहां से आई, इसके पास जुर्रत कहां से आई, और इसके पास ताकत कहां से आई? तो इन सारी बातों का जवाब मेरे कायद ने एक ही जुमले में इरशाद फरमा दिया, ए जमाने वालों याद रखो, हम बदनी ताकत से नहीं, हम कल भी मदनी ताकत से लड़ते थे, आज भी मदनी ताकत से लड़ने वाले हैं।